बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम 5th वीक का लेक्चर पढ़ेंगे जो कि बैडमिंटन है। बैडमिंटन लड़के और लड़कियां दोनों खेलती हैं। आजकल के दौर में ये बहुत मकबूलियत इख्तियार कर गया है। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और बाद में हम इसको मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, बैडमिंटन का खेल ख़वातीन का पसंदीदा खेल है और इसके साथ ये बॉयज़ लड़के भी बहुत ही शौक़ से खेलते हैं। ये खेल इंडोर हॉल के अलावा घरों के लॉन और दीगर खुली जगहों पर भी खेला जाता है। बाज़ माहिरीन बैडमिंटन खेल को दुनिया का एक कदीम खेल करार देते हैं जो 2000 साल कबल चीन और एशिया के दूसरे ममालिक में खेला जाता था। इस खेल की इब्तदाई शक्ल कदीम चीन के खेल ताई जियान जी से मिलती जुलती है, जिसमें शटल का इस्तेमाल होती थी, लेकिन रैकेट नहीं बल्कि पाँव से शटल कॉक को उछाला जाता था। 19वीं सदी में हिंदुस्तान के शहर पूना में तैनात बरतानी सिपाहियों ने बैडमिंटन खेल में पहली मरतबा शटल कॉक और रैकेट का साथ नेट का इस्तेमाल किया। बरतानी फौजी अफसरों ने हिंदुस्तान में क़याम के दौरान पूना शहर में इस खेल की इब्तदा की। शुरू में इस खेल का नाम भी पूना रखा गया। बैडमिंटन के पहले कवानीन 1877 में कराची में मुरतब किए गए। 1870 में बरतानी फौजियों ने इसे इंग्लैंड में मुतारफ़ कराया। इस दौर के बरतानी हुकूमत की 8वीं सरबराह डेविड ऑफ ब्यूफोर्ट ने अपनी रियासत बैडमिंटन के नाम पर इस खेल का नाम बैडमिंटन रखा। बैडमिंटन नाम की एक रियासत अब भी इंग्लैंड में मौजूद है। 1883 में इंग्लिस्तान में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड का क़याम अमल में आया। इस अदारे ने कराची में वाज़िया किए गए कायदो ज़ाब्त को अज़ सर-नौ मुरतब किया। पहली जंग अज़ीम के बाद यह खेल दुनिया में इस कदर मकबूल हुआ कि इसके फ़रोग़ के लिए एक आलमी अदारे की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जाने लगी। चनांचे 1934 में बैडमिंटन का आलमी अदारा इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन कायम किया गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे जी इसका मेजरमेंट ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, जो कि हम इसको अब तफसील से पढ़ेंगे। आप इसे देखें। Hello and welcome. Today I am going to discuss about measurement of badminton court. So let's get started. These sidelines shall be 13.4 meter long. These lines are called boundary line. For singles game, these lines shall be 5.18 meter long, and for doubles game, these lines shall be 6.1 meter long. Outer edge of the double side line shall be 46 centimeter away from outer edge of the single side line. A vertical net shall be divided the court into two equal courts. These lines are short service line and 1.98 meter away from the net. These are center line. This line divides the court equally from the short service line to the boundary line. These are long service line. For doubles, distance between short service line and the long service line shall be 3.88 meter, and from boundary line it shall be 72 centimeter. All these white lines are 40 millimeter wide. Net post shall be placed at the double side line. Top of the net height at the middle of the court shall be 1.524 meter, and near the post it shall be 1.55 meter. The net shall be 76 centimeter in depth. Net shall be in dark color, and top of the net shall be edged with a 75 millimeter wide
اس کے بعد عزیز طلباء ہم بیڈمنٹن پول کے بارے میں پڑھیں گے۔ کورٹ کی سطح سے پول کی بلندی یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ جو ہے وہ ہے 1.52 میٹر 5 فٹ ہوگی۔ وہ کافی مضبوط ہونے چاہیے تاکہ مودی کھڑے رہیں اور نیٹ کو تان کر رکھیں۔ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی جو ہے اونچائی ہے جی 1.55 میٹر 5 فٹ 1 انچ۔ نیٹ، یہ جو نیٹ آپ کو نظر آ گیا، نیٹ مدہ گہرے رنگ کی ڈوری کا بنا ہو جس کی جالی یا سریخ 50 ملی میٹر سے کم اور 20 ملی میٹر سے زیادہ نہ ہو۔ نیٹ کی چوڑائی یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے 76 ملی میٹر 2 فٹ 6 انچ اور لمبائی جو ہے جو اس کی نیٹ کی یہ آپ نظر آ رہے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ 6.10 میٹر ہے، 20 فٹ مثلاً ہوگی۔ نیٹ کی بلندی یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے جی نیٹ کی بلندی 1.52 میٹر 5 فٹ اور اطراف سے سائڈ سے ڈبل سے یہاں سے جو اینڈ لائن ہے جی یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو ہے 1.55 میٹر 5 فٹ 1 انچ۔ نیٹ کے اوپر 75 3 انچ کا دوڑا سفید یہ جہاں یہ لگا ہوا ہے، یہاں ایک پٹی لگائی جاتی ہے جو 3 انچ کا دوڑا سفید فیتہ ہو جس میں سے ڈوری گزرے۔ یہ ڈوری اتنی لمبی ہو کہ پول کے سروں سے وزن کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ اس کے بعد جی ہمارا جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے شٹل ہے جی۔ شٹل یہ دیکھیں جی اس میں 16 پر لگے ہوں جن کی لمبائی 62 ملی میٹر 2.5 انچ سے 70 ملی میٹر 3.25 انچ ہو، جبکہ اس کا وزن 4.74 سے 5.50 گرام ہوگا۔ شٹل کا پیندہ یہ جو ہے جی نچلی طرف سے گول ہوگا جس کا قطر یہ والا 25 سے 28 ملی میٹر ہو سکتا ہے۔ آگے ہے جی اس کا ہے جی نیو سرونگ سسٹم یا اسکورنگ سسٹم ہے جی۔ نیا اسکورنگ سسٹم کیا ہے؟ انٹرنیشنل بیڈمنٹن فیڈریشن کے مطابق نئی اسکورنگ سسٹم کا اطلاق فروری 2006 سے ہو چکا ہے۔ اسکور میں پوائنٹ کا اضافہ ریلی سسٹم کے تحت ہوگا۔ ڈبل یا مردوں کے سنگل میں پہلے 21 پوائنٹ بنانے والی ٹیم گیم جیت جائے گی۔ سنگل مقابلوں کے لیے نئے قوانین جو آئے ہیں جی، سنگل کا میچ 3 گیموں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے 21 پوائنٹ بنانے والا گیم جیت جائے گا۔ ریلی جیتنے والا کھلاڑی 1 پوائنٹ جیت جائے گا۔ سکور 20-20 ہونے کی صورت میں کسی بھی کھلاڑی کو گیم جیتنے کے لیے متبادل 2 پوائنٹ کی برتری کی ضرورت ہوگی۔ سکور 29-29 ہونے کی صورت میں جو کھلاڑی پہلے 30 پوائنٹ بنا لے گا وہ گیم جیت جائے گا۔ اس میں عزیز آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی کھلاڑی 19 پوائنٹ بناتا ہے، آپ 21 بناتے ہیں تو آپ وہ گیم جیت جاتے ہیں۔ اگر ان کیس آپ کے 20 برابر ہو جاتے ہیں تو آپ نے 2 کے مارجن سے جیتنا ہے۔ مثلا اگر ایک کے 20 ہیں تو آپ نے 22 کرنے ہیں، دوسرے کے 20 ہیں تو آپ نے 23 کرنے ہیں۔ ان کیس اگر آپ دونوں پلیئرز کے 29 پوائنٹ ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں جو 30 نمبر پہلا فرسٹ بنا لے گا وہ جیت جائے گا، وہ سیٹ جیت جائے گا۔ اس میں 13 پوائنٹ لاسٹ پوائنٹ ہے۔ گیم جیتنے والے کھلاڑی اگلے گیم میں پہلے سروس کرنے کا حقدار ہے۔ جس نے جو سیٹ جیتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اگلا سیٹ سٹارٹ کرے، سروس وہ کرے گا۔ 11 پوائنٹ سکور ہونے پر دونوں کھلاڑیوں کو 60 سیکنڈ کا وقفہ آرام کے لیے دیا جاتا ہے۔ پہلی اور دوسری گیم کے درمیان 2 منٹ جبکہ مزید 2 منٹ دوسری اور تیسری گیم کے درمیان وقفہ دیا جاتا ہے۔ سنگل، اس کے بعد ہے سنگل اور ڈبل کے قوانین نئے سسٹم کے مطابق سروس درست سروس کوئی بھی کھلاڑی سرو کرنے میں غیر ضروری تحید نہیں کرے گا۔ سروس کرنے والا اور وصول کرنے والا کورٹ کی لائنوں کو چھوئے بغیر مخالف کو ترچھی کورٹس میں کھڑے ہو کے جب تک سروس ہو نہ جائے سروس کرنے والا اور وصول کرنے والا کے دونوں پاؤں کا کچھ حصہ ساکن حالت میں کورٹ کی سطح کو چھوتا رہے۔ سروس کرنے والے کا ریکٹ ابتدائی طور پر شٹل کے پیندے پر ہٹ کرے جبکہ شٹل سروس کرنے والے کے کمر سے نیچے ہو۔
सर्विस करते वक्त सर्विस करने वाले के रैकेट की हरकत आगे की तरफ जारी रहे जब तक कि सर्विस का अमल मुकम्मल ना हो जाए। सर्विस करने वाला वसूल करने वाले के लिए तैयार होने से पहले सर्विस नहीं करेगा, लेकिन वसूल करने वाला तैयार तस्वर होगा अगर सर्विस के रिटर्न की कोशिश की जाएगी। सर्विस करते वक्त रैकेट का हेड खिलाड़ी के खेलने के वाले हाथ के अंगूठे की सतह से नीचे होना चाहिए। अजीज़ तलबा, हम ये अगर आपने कोई गेम स्टार्ट करनी है तो राइट कोर्ट से राइट कोर्ट आप सर्विस करेंगे, ठीक है। और डबल में ये होगा कि अगर आप ये वाला प्लेयर आप सर्विस कर रहा है तो राइट कोर्ट वाला ही इसको रिसीव करेगा। अगर दूसरा प्लेयर इसको रिसीव करता है तो ये फॉल है। अगर इस कोर्ट में वो सर्विस गिरती है तो ये भी फॉल है। अगर डबल में ये बैक गैलरी आउट होती है, ये वाली उसमें सर्विस में, अगर सर्विस इसमें जाके गिरती है इस जगह पे गिरती है तो ये फॉल है। ये साइड गैलरी जो है, ये साइड गैलरी ये इन है डबल में, ये सिंगल में आउट होती है सर्विस में। बाकी सिंगल में ये आउट सारी ये जो साइड गैलरी है ये सिंगल की नहीं है, ये डबल वालों की होती है। लेकिन ये जब ये वाला एरिया जो है ये वाला, ये सिंगल में भी सर्विस में इन समझा जाता है, लेकिन डबल में ये आउट होता है। यहाँ से जुफ्त अदाद में यहाँ से स्टार्ट होगा ये वाली जगह से, और जो ताक अदाद होंगे यहाँ से, मसलन 0, 2, 4, 6, 8, 10 होंगे तो ये जो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये भाई ये शार्ट सर्विस एरिया है। अगर आप यहाँ से सर्विस कराते हैं दूसरी साइड पे शार्ट सर्विस एरिया में, अगर आपकी सर्विस खेलती है तो दूसरा प्लेयर अगर उसको टच नहीं करता, छोड़ देता है, तो आपका ये फॉल हो जाएगा और दूसरे खिलाड़ी को पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपकी सर्विस यहाँ से आपने करवाई और यहाँ चली गई तो इस सूरत में भी आपका ये फॉल हो जाएगा, दूसरे को पॉइंट मिल जाएगा, बशर्ते कि वो दूसरा खिलाड़ी इसको टच ना करे। अब है जी सिंगल। अगर सर्विस करने वाले ने कोई स्कोर ना किया गया हो तो इस गेम में इसका जुफ्त स्कोर हो तो खिलाड़ी अपने दाहिने सर्विस कोर्ट से सर्विस करेगा या सर्विस वसूल करेगा। शटल को सर्विस करने वाला और वसूल करने वाला बारी बारी हिट करेंगे। ये अमल इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि कोई फॉल नहीं हो जाता। शटल का हरकत में नहीं रहती। अगर सर्विस वसूल करने वाला खिलाड़ी कोई फॉल करे तो सर्विस करने वाले का 1 पॉइंट स्कोर होगा और वो अब दूसरे कोर्ट से सर्विस कराएगा। अगर सर्विस करने वाला कोई फॉल करता है तो इसका सर्विस करने का हक छीन जाता है और सर्विस वसूल करने वाले का पॉइंट स्कोर होगा और साथ ही वो सर्विस करने वाला बन जाएगा। अब है जी डबल में। डबल की गेम की इब्तदा और हर मरतबा जब कोई टीम सर्विस करने का हकदार बनती है, सर्विस दाएं सर्विस कोर्ट से शुरू होगी, जो मैंने आपको पहले बताया। सिर्फ सर्विस वसूल करने वाला सर्विस को रिटर्न करेगा। अगर इसके साथी ने शटल को हिट किया या शटल इसे छू गई तो सर्विस करने वाली टीम का 1 पॉइंट स्कोर होगा। सर्विस के रिटर्न वापस होने के बाद सर्विस करने वाली टीम का कोई भी खिलाड़ी और फिर बाद में वसूल करने वाले टीम का कोई भी खिलाड़ी शटल कॉक को खेल सकता है और इस तरह खेल जारी रहेगा हत्ता कि शटल हरकत में नहीं रहती। सर्विस रिटर्न वापस करने के बाद खिलाड़ी कोई कोर्ट को अपने हिस्से में किसी भी पोजीशन में खेल सकते हैं। अगर सर्विस वसूल करने वाली टीम का कोई फॉल करती है तो सर्विस वाली टीम को 1 पॉइंट स्कोर होगा और इस सर्विस करने वाला दोबारा सर्विस करेगा। अगर सर्विस करने वाली टीम का कोई फॉल करती है तो इससे सर्विस का हक छीन जाता है और मुखालिफ टीम को पॉइंट स्कोर हो जाता है। सर्विस करने का हक किसी भी गेम में पहले सर्विस करने वाले से दूसरी टीम के पहले वसूल करने वाले के पास जाता है और फिर बाकी तमाम गेम के दौरान एक खिलाड़ी से इसके साथी और फिर मुखालिफ खिलाड़ी से इसके साथी को मिलता रहेगा। अगली या दूसरी गेम में जीतने वाली टीम को कोई भी खिलाड़ी सर्विस करा सकता है और हारने वाली तरफ का कोई भी खिलाड़ी इससे सर्विस वसूल कर सकता है। सर्विस कोर्ट की गलतियां: बारी के बगैर सर्विस करना, सर्विस गलत कोर्ट से कराना। अब सर्विस फॉल्ट है। अगर सर्विस दुरुस्त ना की जाए, अगर सर्विस करने वाला सर्विस की कोशिश में शटल को मिस कर देता है, सर्विस करने पर शटल नेट में फंस जाती है, खेल में अगर शटल कोर्ट की हदूद से बाहर गिरती है, नेट के अंदर से नीचे या नीचे से गुजरती है, नेट को पार नहीं कर सकती, छत या अतराफ की दीवारों को छूती है, खिलाड़ी के जिस्म या कपड़ों को छूती है, कोर्ट के बाहर गिरदोनवाह में किसी चीज़ या शख्स को छूती है, अगर शटल हरकत में हो और खिलाड़ी
उस सूरत में क्या होगा, नेट या पोल की रैकेट जिस्म या लिबास से छू जाता है, मुखालिफ को एक जायज़ स्ट्रोक खेलने में रुकावट डालता है। अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर किसी भी हरकत से मुखालिफ के खेल में खलल डालता है, मसलन शॉटिंग करके या इशारे करने से, फिर दूसरी सूरत में खेलते हुए अगर शटल को हो पकड़ी जाए, रैकेट पर थम जाए और फिर स्ट्रोक खेलते हुए रगड़ी जाए, एक ही खिलाड़ी से तसलसल में 2 मरतबा हिट हुआ दूसरे स्ट्रोक से, या एक खिलाड़ी और दूसरे खिलाड़ी से बारी बारी हिट हो, या खिलाड़ी के रैकेट को छूती हो और खिलाड़ी के कोर्ट के पिछली तरफ परवाज जारी रखती है, या अगर खिलाड़ी संगीन कसूरवार हो और बार बार कानून शिकनी करे। अजीज़ तलबा, इसमें 2 बातें आप समझ लें। जब आपने सिंगल गेम खेलनी है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, आपकी ये वाली लाइन सिंगल में नहीं होगी, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ सर्विस करानी है, ये वाला एरिया आपका सर्विस कराने का है। अगर आपकी सर्विस यहाँ शॉर्ट सर्विस एरिया में गिरती है तो ये फॉल है। फिर आपने एक पॉइंट ले लिया तो आप अपनी साइड चेंज करेंगे, यहाँ से फिर सर्विस कराएंगे, ये वाला प्लेयर यहाँ चला जाएगा और आपने ये लेफ़्ट कोर्ट से लेफ़्ट कोर्ट में सर्विस करनी है। ये सिंगल के रूल्स हैं और ये वाला एरिया आपके लिए आउट है। मसलन सिंगल में ये साइड गैलरी आउट समझी जाती है। अब ज़ीतुल्बा, जब डबल गेम स्टार्ट होती है तो डबल का भी स्टार्ट यहाँ से होता है और जो आपने स्टार्ट करना है यहाँ से स्टार्ट करना है, इस जगह से यहाँ से स्टार्ट करके आपने यहाँ से सर्विस करानी है और इस कोर्ट में सर्विस करानी है। अगर आपकी सर्विस करा के आपकी शटल इसको लगती है तो अगर शॉर्ट सर्विस एरिया में गिर जाती है तो ये फॉल है, अगर शॉर्ट सर्विस एरिया में नहीं गिरती तो ये फॉल नहीं होगा। अगर फिर आपने पॉइंट लिया और आप इस साइड पे आ गए तो ये दूसरा प्लेयर जो खड़ा होगा वो सर्विस रिसीव करेगा, ना कि ये पहले वाला खिलाड़ी सर्विस रिसीव करेगा। अजीज़ तुलबा, आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो डबल के लिए ये चीज़ें हैं, ये डबल के लिए ये साइड गैलरी है, सिंगल के लिए नहीं है। सर्विस में सिर्फ ये बैक गैलरी डबल्स में आउट होती है, सिर्फ डबल के सर्विस के बाद ये बैक गैलरी खेल में इन समझी जाती है। ये वाली आपने राइट कोर्ट से राइट कोर्ट सर्विस करानी है, लेफ़्ट कोर्ट से लेफ़्ट कोर्ट सर्विस करानी है, और जब आप लेफ़्ट कोर्ट से सर्विस करा रहे हो तो आप जो खिलाड़ी होगा वो इधर से सर्विस रिसीव करेगा। इसके बाद आपने अगर राइट कोर्ट से सर्विस कराई है तो फिर आप लेफ़्ट कोर्ट आ रहे हैं तो लेफ़्ट कोर्ट से आप सर्विस करा रहे हैं तो लेफ़्ट कोर्ट में ही जानी चाहिए। ये था अज़ीज़ तुल्बा हमारा सिंगल और डबल के लिए रूल जो आपने पढ़े हैं। अब इसके बाद है जी हमारी नेक्स्ट हेडिंग है जी मैच ऑफिशियल्स। मैच ऑफिशियल्स में इसमें एक अज़ीज़ तुल्बा मैच ऑफिशियल से पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं जी। लेट, खेल को रोकने या अंपायर लेट पकारता है। किसी नागहानी या हादसाती वाक़यात पर लेट दिया जा सकता है। अगर सर्विस करते वक्त सर्विस करने वाला और वसूल करने वाला दोनों बैक वक्त कॉल करें तो लेट है। अगर सर्विस करने वाला सर्विस वसूल करने वाले के लिए तैयार होने से पहले सर्विस कराता है तो लेट है। अगर खेलते वक्त शटल टुकड़े टुकड़े हो जाती है और इसका पेंदा काक बाकी शटल से बिल्कुल अलग हो जाता है तो ये लेट है। अगर शटल लाइन जज की नज़र से ओझल हो और अंपायर फैसला ना कर सके तो ये लेट होगा। दीगर तमाम मैचों में दूसरी और तीसरी गेम के दरमियान वक्फा होगा जो कि 5 मिनट से ज़्यादा ना हो। किसी खिलाड़ी को मैच के दौरान मशवरे की इजाज़त नहीं। मौसवाए मैच के फैसले के कोई खिलाड़ी अंपायर की इजाज़त रजामंदी के बगैर कोर्ट नहीं छोड़ सकता। खेल की एक मतली के लिए अंपायर खुद मुख्तार जज है रेफरी के मशवरे के साथ। एक खिलाड़ी जानबूझ कर खेल रोकने की मतली का सबब नहीं बनने होगा, जारहाना रवैया अख्तियार नहीं करेगा, गैर शस्ता फ़ाइल का मरतकब ना होगा। इसके बाद है जी हमारी नेक्स्ट आईडी है जी मैच ऑफिशियल्स हैं जी। इसमें सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है जी वो है जी रेफरी। रेफरी के क्या फ़राइज़ हैं, वो क्या क्या ड्यूटी सर अंजाम देता है। रेफरी इस टूर्नामेंट या मुकाबला का कुली इंचार्ज होगा। अंपायर का जहां तकर्रर किया जाए इसका इंचार्ज होगा। अंपायर रेफरी को और रेफरी को अदम मौजूदगी में ज़िम्मेदार अहदेदार को कोर्ट इतला देगा। फिर इसके बाद है जी सर्विस जज, ये वाला जी सर्विस जज। अगर सर्विस फॉल हो तो सर्विस
फॉल्ट पुकारेगा। सर्विस जज पोल के करीब अंपायर के मुखालिफ सिमत में कुर्सी पर बैठा होता है। लाइन जज, इसके बाद है जी हमारी नेक्स्ट हेडिंग है लाइन जज। लाइन जज शटल इन या आउट होने का इशारा करेगा। किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले के लिए 10 लाइन जज मुकर्रर किए जाते हैं। हर लाइन जज पर अलर्ट शुदा लाइनों का जिम्मेदार होता है अंपायर। इसके बाद है जी हमारी नेक्स्ट आइडिया जी अंपायर बैडमिंटन के कवानीन को नाफिज करेगा और इनकी पाबंदी कराएगा। खेल के दौरान फॉल या लेट का फैसला करेगा। अगली सर्विस होने से पहले की गई किसी मतनाज़ा पॉइंट की अपील पर फैसला देगा। रेफरी के मशवरे से लाइन जज और सर्विस जज को तकर्रर करेगा या हटाएगा। अंपायर मैच के तमाम मामलात का रिकॉर्ड और रिपोर्ट रेफरी को देता है। इसके बाद है जी हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है जी, जारी बात है जी इंटरनेशनल और तमाम मैचों में बैडमिंटन जो है इंडोर खेला जाता है। इंडोर बैडमिंटन हॉल उसके क्या रूल्स हैं, उसकी कितनी हाइट है वो हम पढ़ेंगे। बैडमिंटन के लिए तमाम बैनुल अक़वामी मुकाबले इंडोर हॉल में मुनक़्क़द किए जाते हैं। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बैडमिंटन मुकाबलों के लिए हॉल की छत की कोर्ट की वसत से बुलंदी 9.14 मीटर 30 फुट होनी चाहिए। साइड लाइन के बाहर 91 सेंटीमीटर 3 फुट और बैक लाइन से बाहर 1.52 मीटर 5 फुट जगह खाली होनी चाहिए। हाल की पुश्त की दीवारें हल्के सब्ज़ रंग की तजवीज़ की जाती हैं। कोर्ट का फर्श आजकल मसनूई मैट का होता है जिसका रंग भी गहरा होना चाहिए जो फिसलन से पाक और रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम हो। बल्ब कोर्ट के ऊपर 4.80 मीटर 16 फुट बुलंदी पर हो। इसलिए इन्होंने कहा है कि बैक जो दीवारें हैं वो गहरे रंग की होनी चाहिए। शटल वाइट रंग की होती है तो वो जब शटल तेज़ खेली जाती है तो उसमें वो नज़र नहीं आती, इसलिए वो दीवारें कोर्ट का वो रंग जो है गहरा कर देते हैं ताकि शटल विजिबल हो, बेहतर तरीके से नज़र आ जाए। इसके बाद अजीज़ तलबा हम पढ़ेंगे बैडमिंटन की तकनीकी महारतें कि रैकेट किस तरह पकड़ा जाता है, उनकी ग्रिप क्या है। वो हम ज़ाहिर बात है हर एक का स्टाइल अलग-अलग है कि वो किस तरह खेलता है, लेकिन मैं थोड़ा सा तफसील से आप सबको बताऊंगा कि रैकेट का दुरुस्त पकड़ना बैडमिंटन खेल में सबसे अहम मशक है। गिरफ्त की दुरुस्त तकनीक से खिलाड़ी अपने रैकेट को खेल के दौरान बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर सकता है। गिरफ्त के दो इकसाम हैं। फोर हैंड ग्रिप, ये एक बुनियादी गिरफ्त है जिसकी मदद से तमाम इकसाम के फोर हैंड स्ट्रोक्स खेली जाती हैं। रैकेट पकड़ते वक्त इसका रुख रैकेट पकड़ने वाले के हाथ की हथेली के मुतवाज़ी हो। रैकेट को हाथ की आखिरी 3 उंगलियों की मदद से हैंडल के आखिरी किनारे से पकड़ें। शहादत की उंगली रैकेट के गिर्द लिपटी हो। अंगूठा दरमियानी उंगली के बिल्कुल ऊपर दबाव वाली पोजीशन में हो। इस तरह आप अंगूठे और शहादत वाली उंगली से रैकेट की हरकत और गिरफ्त में मामूली तब्दील पैदा कर सकते हैं। इसके जी बैक हैंड ग्रिप। बैक हैंड ग्रिप फोर हैंड ग्रिप से तकरीबन मिलती जुलती है। बैक हैंड ग्रिप में अंगूठा दरमियान वाली उंगली से दाएं तरफ हटाकर हैंडल की चिपटी तरफ रखा जाता है। ख्याल रहे कि बाजू को इजलात में तनाव ना आए बल्कि ढीलापन रहे और रैकेट उंगलियों में पकड़ा जाए ना कि हथेली में। इसके बाद अब मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रोक्स हैं जो मैं बताऊंगा कितने हैं। एक है जी ओवर हेड स्ट्रोक है, साइड आर्म है, अंडर हैंड है, फोर हैंड स्ट्रोक्स हैं, ड्राइव बैक हैंड स्ट्रोक्स हैं। मंदरजा बिला सभी स्ट्रोक फोर हैंड और बैक हैंड की पोजीशन से खेले जा सकते हैं। इसके बाद सर्विस। बैडमिंटन में दुरुस्त सर्विस की बड़ी अहमियत है। सर्विस की कई अक़साम हैं। बेहतर सर्विस के लिए दर्जा झेल बातों का ख्याल रखें। सर्विस के आगाज़ के वक्त जिस्म हरकत में ना हो, दोनों पाँव का रब्ता ज़मीन से हो, बाजू सीधा रखें। सर्विस के दौरान जिस्म के हस्बे ज़रूरत घुमाएं। सर्विस करते वक्त जिस्म का वज़न दाएं से बाएं पाँव पर शिफ्ट करें। सर्विस करते हुए रैकेट का सिरा हाथ से ऊंचा ना हो और शटल कॉक को कमर से नीचे खेला जाए। अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा बैडमिंटन जो हमने पढ़ा है, इसके रूल्स रेगुलेशन। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। अपना ख्याल रखना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।